Hello students, in today's class I will talk about rocks and different types of rocks. So this is the topic of discussion for today's class. So let's discuss it further without any further delay. And yeah, in previous classes I told you or I taught you about the interior of the earth, that what is inside the earth. Okay, we live on the earth, but what is deep down inside the earth, we read about that. So you have to keep some of the concepts or the concept of the interior of the earth in your mind to understand this concept. Okay, so let's discuss it. As we all know, we are all are living in Earth's lithosphere. Okay, so this is the place where all the monuments, all the buildings are made up. So lithosphere is mainly a composition of two words, lithos and sphere. Lithos and what? It is the composition of two Greek words, lithos and sphere. Now what does it mean? Lithos means rock. It means what? Lithos means rock, and sphere, as you all know, it means a part. Okay, so we all are living in the rocky part of the earth. Okay, and that is known as lithosphere. आप सभी जानते हो, that मैंने बताया है आप लोगों को, that earth is made up of three concentric layers. The upper part is crust, the next part is, or the middle part is mantle, and the innermost part is core. So we all are living in the crust, and the crust is what? It is the lithic part, or it is the stony part of the earth crust. So earth की जो crust है वो क्या है? Rocky है. Okay, पत्थरों से बनी हुई है. Now here I am telling you that lithosphere is the composition of two Greek words. दो Greek words से मिलकर एक English word बनाया गया, that is lithosphere, which means rock, and sphere means what? Part. So the rocky part. So as you all know, the houses which are built on the earth crust, it is built upon the अर्थ लिथोस्फीयर. अर्थ के लिथोस्फीयर में जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जितने भी बिल्डिंग्स हैं, ये सभी बने हुए हैं, या माउंटेन्स जितने भी हैं, दे आर all are the part of lithosphere. Okay, yeah, so let's discuss it further. So now what happens is, it is very important to study these rocks, okay, because it helps us to understand that how these are formed. So it is very interesting to know, ये हमारे लिए बहुत ही क्यूरियोसिटी का एक क्वेश्चन है कि ये रॉक्स बनते कैसे हैं, हाउ डू दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड. ओके, सो बेसिकली दीज रॉक्स आर कॉम्पोजिशन ऑफ मिनरल्स. ओके, अब ये मिनरल्स क्या होते हैं? नाउ in our earth, okay, there are few minerals, or there are many minerals which are found. अब ये minerals क्या होते हैं? They are the naturally occurring substances. Okay, naturally occurring substances, because ये जो है ये natural processes से एक minerals जो होते हैं वो उनसे बनने वाली चीजें होती हैं. Now rocks क्या होते हैं? Rocks are made up of minerals. अब ये मिनरल्स क्या होती हैं? दे आर द नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस जिनमें कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं. ओके, सो व्हाट इज मिनरल? मिनरल इज अ नेचुरली ऑकरिंग केमिकल कंपाउंड्स ऑफ विच रॉक्स आर मेड अप ऑफ, जिनसे रॉक्स बने हुए होते हैं. ओके, नाउ you all have heard this thing that diamond is the hardest known material. आपने सुना होगा that सबसे जो कठोर या सबसे हार्ड जो मटेरियल है वो है हमारा डायमंड. ओके, सो डायमंड इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ रॉक. ओके, ये भी क्या है? एक तरह के रॉक्स ही हैं. बट what is the thing that we can differentiate between each of the other रॉक्स? हम अलग अलग रॉक्स के बीच में डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं? हाउ डू वी आइडेंटिफाई दैट दिस इज द हार्ड रॉक, दिस इज द सॉफ्ट रॉक? ओके, सो विद द टेक्सचर, जो टेक्सचर होता है, जो कलर होता है, उसकी जो परमिएबिलिटी होती है. अब परमिएबिलिटी क्या होती है, टेक्सचर क्या होता है, कलर क्या होता है, हम उसे समझते हैं.
आपने कई रॉक्स देखे होंगे, यू हैव केम अक्रॉस मेनी मेनी रॉक्स, ओके। आपने कई रॉक्स देखे होंगे, देर आर फ्यू रॉक्स विच आर वेरी सॉफ्ट, ओके। कुछ ऐसे रॉक्स होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, जिन्हें ईजिली क्रश किया जा सकता है, ओके। सो दे आर कॉल्ड एज सॉफ्ट रॉक, and the rocks which are kind of very hard, which cannot be crushed very easily, okay। so वैसे rocks को हम hard rocks बोलते हैं। कुछ रॉक्स के कलर्स डिफरेंट होते हैं, कुछ रॉक्स के कलर्स बिल्कुल ही दूसरे रॉक से डिफरेंट होते हैं। कुछ जो होते हैं ज़्यादा परमिएबल होते हैं। अब परमिएबल क्या होता है? परमिएबल मीन्स द रेजिस्टेंस ऑफ वाटर, ओके। द रेजिस्टेंस क्या होते हैं? अब देखिए, आप कुछ पत्थरों को देखोगे कि उनमें जो वाटर रेजिस्टेंस कैपेसिटी है वो क्या बहुत कम होती है। वाटर रेजिस्टेंट कैपेसिटी, रेजिस्ट करने का मतलब क्या होता है? रोकना। कई ऐसे रॉक्स होते हैं जो इजीली क्या वाटर ऑब्जर्व नहीं करते हैं, और जब वो वाटर ऑब्जर्व नहीं करते हैं तो वो क्या जल्दी वो क्या वीक नहीं होते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हो दैट बाय द फोर्सेस ऑफ विंड, बाय द फोर्सेस ऑफ वाटर, जो रॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं? उनके पार्टिकल्स लूज होते हैं, और जब वो लूज होते हैं तो क्या होते हैं? वो वेदर्ड हो जाते हैं। वेदर्ड का मतलब होता है वो टूट टूट कर क्या डिफरेंट डिफरेंट सेडिमेंट्स में बढ़ जाते हैं। टाइनी सेडिमेंट्स, टाइनी पार्टिकल्स में वो क्या हो जाते हैं? क्रश हो जाते हैं। सो देयर आर फ्यू रॉक्स विच आर परमिएबल, जो क्या वाटर रेजिस्टेंस होते हैं, और जिन कोई ऐसे रॉक्स होते हैं जिनमें परमिएबिलिटी क्या होती है? कम होती है। वो वाटर को रेजिस्ट नहीं कर पाते, वो वाटर को ऑब्जर्व कर लेते हैं, लाइक दोज रॉक्स विच आर सॉफ्ट। आप समझ सकते हो कि जो रॉक्स सॉफ्ट हैं वो क्या करेंगी? वाटर को ईजिली ऑब्जर्व कर लेंगी। अब वाटर को ऑब्जर्व करने से वो क्या होंगी? धीरे धीरे वीक होंगी, और धीरे धीरे वो क्या टाइनी फ्रेगमेंट्स में, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बटेंगी, और वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स से वो सेडिमेंट्स में क्या होती हैं? डिवाइड हो जाती हैं। ये होती है परमेबिलिटी की मीनिंग, ओके। सो अब देखिए, बहुत सारे रॉक्स होते हैं, लाइक मार्बल, लाइक ग्रेनाइट, लाइक सैंडस्टोन। सो ऑल ऑफ देम बिलोंग्स टू द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रॉक। अब देखिए, रॉक्स की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सो व्हाट आर दीज टाइप्स? So the first type is igneous rock. The first type is what? The first type is igneous rock. Other one is sedimentary rock, sedimentary rock, sedimentary rock. And the last one is metamorphic rock, metamorphic rock. अब देखिए, one by one we'll discuss it one, okay। So igneous means fire. So we can understand a lot about the concept with the word, ओके। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हम अगर वर्ड समझ जाते हैं तो वो कॉन्सेप्ट हमें लाइफ टाइम तक याद रहने वाले होते हैं। सो व्हाट इज इग्नियस? इग्नियस मीन्स फायर। सो दोज रॉक्स विच आर फॉर्म फ्रॉम द फायर। अब आग से हम कैसे रॉक्स बना सकते हैं, ये कैसे होता है? सो वी विल डिस्कस इट इन लेटर पार्ट, ओके। सो हम लेटर इसे डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वन बाय वन सभी वर्ड्स के मीनिंग बता देना चाहती हूँ। सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्स क्या होते हैं? अभी मैंने आपको बताया दैट व्हेन एवर अ रॉक गेट्स वीक, जब भी एक रॉक वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, देन इट डिवाइड्स और इट ब्रोक डाउन इनटू सेवरल फ्रेगमेंट्स, और वो क्या होते हैं? सेवरल फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, और वो जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सेडिमेंट्स कहलाते हैं, ओके। अब उन सेडिमेंट्स से जो बनने वाले रॉक्स होते हैं दैट आर नोन एज सेडिमेंट्री रॉक, ओके। नाउ कम्स व्हाट? मेटामॉर्फिक। अब देखिए, मेटामॉर्फिक इज अ वर्ड विच केम फ्रॉम द वर्ड मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फिक वर्ड आया है मेटामॉर्फोसिस से। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है? इट मीन्स चेंज, ओके। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है? चेंज। सो मेटामॉर्फिक रॉक, they are those rock which are formed after the change, okay, after the change in which rocks? Igneous rock and sedimentary rock. If any change occurs in igneous and sedimentary rock, then metamorphic rocks are formed. अगर igneous rock and sedimentary rock में कोई
चेंजेस आते हैं और उनका टेक्सचर बदल जाता है, उनका कलर बदल जाता है, उनकी परमेबिलिटी बदल जाती है, उनके मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बदल जाते हैं, देन दे आर सेड टू बी एज मेटामॉर्फिक रॉक, और उसे हम मेटामॉर्फिक रॉक कह सकते हैं. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स डिस्कस इट फर्दर मोर. इग्नियस रॉक. अब देखिए, इन आर अर्थ क्रस्ट, मैंने आप इन आर अर्थ सरफेस, व्हेन वी विल गो डीप डाउन द अर्थ, अगर हम अर्थ के डीप में जाते हैं, देन व्हाट do we found, then what is there? There is lava, okay, sorry, there is magma, okay. Now these magma come out of the earth's surface through any fissure or through any hole. अब ये क्या होते हैं, जो वीक क्रैक्स होते हैं हमारे अर्थ सरफेस में, जो क्रैक्स होते हैं, या कई बार ड्यू टू हाई प्रेशर ये क्या करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं, एंड देन दे केम आउट, और then they come out of the fissure or the crack, okay. वो क्या होते हैं, क्रैक से क्या होते हैं, बाहर आते हैं. अब ये जो मैग्मा है, जब ये अर्थ सरफेस रीच करते हैं, व्हेन दे रीच द अर्थ सरफेस, दे आर सेड टू बी एज लावा. अब देखिए, पीपल डोंट नो द डिफरेंस ऑफ लावा एंड मैग्मा, दे यूज बोथ ऑफ दीज टर्म्स इन अ सेम वे. Okay, so don't get confused. Magma is the molten rock which is found deep inside the earth. So magma क्या होते हैं, जो अर्थ के डीप में जो molten rock प्रेजेंट होते हैं उसे हम मैग्मा कहते हैं. और जब ये मैग्मा हमारे अर्थ के जो वीकर पोर्शंस है, वीकर जो क्रस्ट है, उससे जब बाहर आते हैं तो उसे हम कहते हैं लावा. एंड whenever lava comes out of the earth surface, अब जब भी whenever magma comes out of the earth surface, it starts solidifying. अब solidifying क्या होता है, मतलब वो आते हैं अर्थ सरफेस को, जैसे ही वो रीच करते हैं वो उनकी टेम्परेचर में चेंज आता है. अब वो क्या करते हैं, दे स्टार्टेड सॉलिडिफाइंग. अब वो क्या करते हैं, सॉलिडिफाई करना, मतलब ठंडा होना. ठंडा, वो जो लावा है जो अभी अर्थ सरफेस में रीच किए हैं, वो क्या होते हैं, धीरे धीरे ठंडे होते हैं. और आफ्टर सॉलिडिफाइंग दे फॉर्म अ रॉक, ओके. और ठंडे होने के बाद वो एक रॉक का फॉर्म ले लेते हैं, एक पत्थर का फॉर्म ले लेते हैं, और उसे ही हम क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक कहते हैं. व्हाट डू वी कॉल दैट? वी कॉल दैट एज इग्नियस रॉक. उसे हम इग्नियस रॉक कहते हैं. सो व्हाट इज इग्नियस? अब देखिए, मैंने फायर बोला था ना, सो फायर से आपको याद रखना है मैग्मा. एंड व्हेन मैग्मा कम्स आउट ऑफ द अर्थ सरफेस, व्हेन इट रीचेस द अर्थ सरफेस, इट स्टार्टेड सॉलिडिफाइंग, एंड आफ्टर कूलिंग डाउन इट टेक अ फॉर्म ऑफ अ रॉक, ओके. और ये एक रॉक की फॉर्म ले लेते हैं, और इस तरह के रॉक्स को हम इग्नियस रॉक कहते हैं. Okay, so the rock which is formed in this way are called as igneous rock. इस तरह के rocks को हम क्या कहते हैं, igneous rock, okay. अब now igneous rock has two parts, intrusive igneous rock and extrusive igneous rock. What is it? Intrusive and extrusive rock. अब देखिए, intrusive and extrusive rock क्या होते हैं. in का मतलब क्या होता है, अंदर. x का मतलब क्या होता है, बाहर. so in means under, and out, x means outer part. So whenever the magma solidifies outer the earth surface or the outside the earth surface के बाहर वो क्या होते हैं, ठंडे होते हैं और वो रॉक फॉर्म करते हैं, देन उसे हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं. क्या कहते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक. और जब तब हम उसे कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक. आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, ओके. सो whenever the magma solidifies outside, whenever the magma cools down outside the earth surface, it can be said as extrusive igneous rock, okay, because it is solidifying outer the earth surface. earth surface के बाहर ये solidify हो रहे हैं, ठंडे हो रहे हैं, और ये solid form में convert हो रहे हैं, और एक rock के form में ये आ रहे हैं. तो इस तरह के rocks को हम extrusive igneous rock कहते हैं. और intrusive igneous rocks वो होते हैं जो अर्थ के अंदर, अर्थ के सरफेस के अंदर ही वो क्या होते हैं, ठंडे हो जाते हैं, ओके. वो जब अपने वे में होते हैं, अपने पैसेज में ही अगर वो ठंडे हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं,
intrusive igneous rock. Okay, now we have example of both these. Intrusive igneous rock की बहुत ही अच्छी best example is granite. Okay, granite is the best example of igneous intrusive igneous rock. And extrusive igneous rocks क्या होते हैं? They are the rock which solidifies outer the अर्थ सरफेस के बाहर जो सॉलिडिफाई होते हैं, कूल डाउन होते हैं और रॉक का फॉर्म ले लेते हैं, उसे हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं. और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है बेसाल्ट. ओके, बेसाल्ट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक. Understood? So I hope you all are clear about igneous rock. So what are igneous rock? When the magma, okay, when the magma comes out of the earth's surface through any cracks or through any weaker part of the crust, then they started solidifying, they start cooling down, and after cooling down they take a form of a rock, and the rock which are formed in this way are known as igneous rock. And in this igneous rock there are two types, intrusive igneous rock and extrusive igneous rock. The rock which are formed below the earth's surface, then it is said to be as intrusive igneous rock, and if it is formed outer the earth's surface, then it can be said as extrusive igneous rock. So the best example of intrusive igneous rock is granite, and the best example of extrusive igneous rock is basalt. Okay, now let's move to the sedimentary rock. Now what is sedimentary rock? I have already explained this in a little bit in previous section, जहाँ पर मैंने आपको बताया sediments क्या होते हैं. So जब भी कोई rocks होते हैं, due to the forces of wind, glacier, moving wind, moving running water, इन सभी चीज़ों, सनलाइट, इन सभी चीज़ों से क्या होते हैं, रॉक्स क्या होते हैं, वीक होते हैं. रॉक्स की जो हार्डनेस होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे कम हो जाती है, और वो क्या ईजिली विद द फोर्सेस ऑफ विंड, विद द फोर्सेस ऑफ वाटर, विद द फोर्सेस ऑफ ग्लेशियर, दे स्टार्टेड ब्रेकिंग डाउन. वो क्या करना स्टार्ट करते, ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करते, टूटना स्टार्ट हो जाते हैं. सिमिलरली आप देखते होंगे जहाँ टैप होते हैं, अगर वो टैप से ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑफ वाटर अगर नीचे फ्लोर पर गिरते हैं, तो वो क्या होते हैं, उस फ्लोर में वो छोटा सा होल क्रिएट हो जाता है. वाई? बिकॉज ऑफ द वाटर, बिकॉज ऑफ द फोर्स दैट इज अप्लाइड, इनटू द इनटू दैट फ्लोर. जो फ्लोर में वो फोर्स क्रिएट होता है, जो वाटर के फोर्सेस हैं या फिर विंड के फोर्सेस हैं, इन सभी से क्या होते हैं, रॉक्स क्या होते हैं, लूज होते हैं. अब लूज होने के बाद क्या होते हैं, ये फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं, और इसे ही हम सेडिमेंट्स कहते हैं. नाउ व्हाट इज सेडिमेंट्री रॉक? सेडिमेंट्री रॉक आर व्हाट दे आर द लेयर ऑफ द सेडिमेंट्स. अब देखिए कई बार क्या होते हैं, ये सेडिमेंट्स लेयर बाय लेयर डिपॉजिटेड होते चले जाते हैं. दे गेट डिपॉजिटेड लेयर बाय लेयर. व्हेन द सेडिमेंट गॉट डिपॉजिटेड लेयर बाय लेयर, देन it after a long period, after 1,000 or 100 of years, they form a rock which is known as sedimentary rock. और वो क्या होते हैं, बहुत सालों बाद, जब हजारों साल बीत जाते हैं, तो ये सेडिमेंट्स किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं एक रॉक के फॉर्म में. एंड जनरली सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड इन द लेयर्स. अब देखिए यहाँ पर इग्नियस रॉक लेयर्स में नहीं होते हैं, बट सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड इन द लेयर्स. क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, सेडिमेंट्स जो होते हैं, जो ब्रोकन फ्रेगमेंट्स होते हैं रॉक्स के, ठीक है, वो क्या होते हैं, सेडिमेंट लेयर बाय लेयर वो क्या होते जाते हैं, डिपॉजिटेड होते चले जाते हैं, जमा होते चले जाते हैं. एंड आफ्टर 1,000 और 100 ऑफ ईयर्स, बहुत सालों बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. और इस तरह से बनने वाले रॉक्स को, द रॉक विच आर फॉर्म्ड इन दिस वे आर नोन एज सेडिमेंट्री रॉक. एंड इस तरह के रॉक्स में कई बार प्लांट, ऑर्गेनिज्म, ये सभी के रिमेन्स भी पाए जाते हैं. अब देखिए इसमें मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाली हूँ, दैट द कोल दैट वी यूज़, ओके, सो जिस कोल का हम इस्तेमाल करते हैं वो भी डिफरेंट लेयर्स में पाए जाते हैं, लाइक पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट. ओके, सो ये जो लेयर होते हैं ये कैसे बनते हैं. सो आपने सुना होगा दैट coals are formed by the remains of plants. Okay,
बाय द रिमेन ऑफ प्लांट। अब देखिए कई बार होता है ऐसा है कि फॉरेस्ट में हर दिन बहुत सारे पेड़ या बहुत सारे ट्रीज क्या होते हैं, अपने आप ही वो टूट कर गिरते हैं, उनके ब्रांचेस, उनके लीव्स वो टूटते हैं, एंड उसके ऊपर क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, फ्रेगमेंट्स, विंड अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर आती हैं, और वो सेडिमेंट्स क्या होते हैं, उस ब्रांचेस को, उस ट्री, उस प्लांट के रिमेन्स को क्या करते चले जाते हैं, डिपॉजिट करते चले जाते हैं, सेडिमेंट बाय सेडिमेंट, लेयर बाय लेयर वो क्या होते चले जाते हैं, धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली वो क्या डीप डाउन इनसाइड द अर्थ क्या हो जाते हैं, बुरी हो जाते हैं, और बड़ी होने के बाद आफ्टर थाउजेंड ऑफ ईयर्स दे टेक द फॉर्म ऑफ अ कोल, और वो किसका फॉर्म ले लेते हैं, कोल का फॉर्म ले लेते हैं। सो कोल इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। इसीलिए आप देखते होंगे दैट कोल के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लाइक पीट होते हैं, लिग्नाइट होते हैं, एंथ्रासाइट होते हैं, बिटुमिनस होते हैं। सो ये सभी अलग अलग लेयर्स में पाए जाते हैं। सबसे पहले आता है पीट, फिर आते हैं लिग्नाइट, देन बिटुमिनस एंड देन एंथ्रासाइट। सो जब सबसे ज़्यादा जो कार्बन कंटेंट होता है वो एंथ्रासाइट में होता है, एंथ्रासाइट बेस्ट कोल्स होते हैं। फिर पीट जो होते हैं अपर पार्ट में होते हैं, मतलब अभी वो उतने अच्छे से वो सेडिमेंट्स जो हैं वो अच्छी तरह से कन्वर्ट नहीं हो पाए होते हैं रॉक में। सो पीट जो होते हैं वो लोएस्ट क्वालिटी, जिनमें कार्बन कंटेंट बहुत कम होता है, वे वैसे कोल होते हैं, ठीक है। सो कोल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। उसी तरह से हमने ये भी पढ़ा है दैट पेट्रोलियम आर फॉर्म बाय द रिमेन्स ऑफ एनिमल्स। अब देखिए हम कई बार जो ओशियंस होते हैं, ओशियन के बेड्स में हर दिन बहुत सारे एनिमल्स की डेथ होती है, बहुत सारे एनिमल्स को दूसरे एनिमल्स क्या करते हैं, किल कर देते हैं। उनके जो शेल्स होते हैं, कई बार आपने देखा होगा जो कोरल्स होते हैं, उनके जो शेल्स होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, ओशियन बेड में चले जाते हैं। अब ओशियन बेड के नीचे बहुत सारे सेडिमेंट्स क्या होते हैं, डिपॉजिट होते चले जाते हैं, एंड आफ्टर थाउजेंड और मिलियंस ऑफ ईयर्स वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। और पेट्रोलियम से बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, लाइक पेट्रोल, डीजल, ओके, द वैसलिन जेली दैट वी यूज़ इन विंटर्स, वो भी क्या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। सो जब भी हम पेट्रोलियम की रिफाइनरी करते हैं, जब उसे रिफाइन किया जाता है तो अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। लाइक हम जो ग्रीस यूज़ करते हैं, जो ब्लैक कलर की ग्रीस होती है, जो साइकिल के चेन्स में लगाई जाती है, ठीक है, ये सभी क्या पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं, बाई प्रोडक्ट्स हैं। सो ये पेट्रोलियम, कोल, ये सभी किससे बन रहे हैं, प्लांट एंड एनिमल के रिमेन से बन रहे हैं। सो वैसे सब्सटेंसेस और वैसे रॉक्स जो प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन से बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। अंडरस्टूड? सो दिस इज द सेडिमेंट्री रॉक, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। देन कम्स मेटामॉर्फिक रॉक। अब देखिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, अब हीट एंड प्रेशर के वजह से ये जो मेटामॉर्फिक रॉक हैं, ओके, दीज मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन there are some changes in igneous and sedimentary rock। जब sedimentary rock और igneous rock में जब कुछ changes होते हैं हीट एंड प्रेशर की वजह से, उनका टेक्सचर, उनका कलर, उनका फॉर्म जब चेंज होता है, और जब वो एक अलग तरह के रॉक को फॉर्म करते हैं, देन इट कैन बी सेड एज मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, सो दैट इज व्हाट द मेटामॉर्फिक रॉक इज। ओके, सो ये होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। So this is it for today's class, and still if you have any doubt then you can ask me.